Welcome students in BA part first. In BA part first, we are reading paper second. Various time we discussed about paper second. Then in second paper, we have some essays, some stories, one single novel, some literary terms, and some chapters of literary history. After 2 or 3 videos, I am repeating the same matter again about our syllabus. It should be clear in our mind that in second paper we are dealing the portion of prose, same as in first paper we dealing the portion of poetry. So sometimes the single question of short question 2 number also be asked in exam. What is the title of second paper? Always keep in mind prose and fiction. Prose and fiction is the title of your second paper. It should keep in your mind always. You surprise me. It also asks you in यूनिवर्सिटी एग्जाम. आपको ताजुब होगा ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जा चुका. So either that is BA part first, that is BA part second, or that is BA part third. No matter. The title of paper is same. In second paper, that is prose and fiction, we were reading essays. And in last video, yesterday, we completed the first paragraph or the detail of first member of Dash Spectator Club. अपना जो Dash Spectator Club ऐसे चल रहा है, अपन ने कल के वीडियो में अपने फर्स्ट मेंबर जो था सर रोजर के बारे में इनपुट्स दिए थे, उनके फीचर्स देखे थे, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स देखे थे. टुडे वी आर डिस्कसिंग द सेकंड मेंबर ऑफ स्पेक्टेटर क्लब. एज वी नो दैट देयर आर 6 मेंबर्स इन स्पेक्टेटर क्लब. ऑल दीज 6 बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट, different profession and deal with a different part of life. There is the reason that they are the company in newspaper publication. So we know that अब ये अलग-अलग कैडर के लोग हैं, अलग-अलग प्रोफेशन और व्यवसाय के लोग हैं. रिचर्ड स्टील अपने न्यूज़पेपर को he just wanted to make it more important, more proficient. So he just make a company dealing with the different profession. The last member yesterday we discussed about a very reputed person, that was Sir Roger. हमने देखा था he was very reputed person. Today we are discussing about the second member. Second member का writer ने नाम नहीं दिया. Writer never mentioned the name of second member. Who is second member? तो second member का there is not any नाम. Title आया है. Title लिखा है member of inner temple. वो इनर टेम्पल का मेंबर था. व्हाट इज इनर टेम्पल? दिस इज डन. इनर टेम्पल इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लॉयर्स एज वी नो एडवोकेट्स. वकीलों का जो समूह था इन लंदन इन इंग्लैंड, इट कंसिडर्ड एज द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट इज इनर टेम्पल. तो सेकंड मेंबर को वी डिस्कसिंग अगेन एंड अगेन विदाउट नेम. देयर इज ए टाइटल. द टाइटल द सेकंड मेंबर ऑफ स्पेक्टेटर क्लब वाज ए लॉयर. वो एक लॉयर था, एक वकील था. तो पहले वाला जो अलग क्लास से था, दूसरा वाला अपन आ रहे हैं जुडिशरी सिस्टम से रिलेटेड है, वकील है. नाम नहीं आया, डोंट बी डाउट एनी टाइम. द नेम ऑफ सेकंड मेंबर नेवर मेंशन. इट आल्सो आस्क्ड इन यूनिवर्सिटी एग्जाम हु वाज द सेकंड मेंबर ऑफ स्पेक्टेटर क्लब. तो आप लिख सकते हो द सेकंड मेंबर ऑफ स्पेक्टेटर क्लब इज ए लॉयर. वो एक वकील है. लेट्स कम विद मी. Page number 7. The gentleman next in esteem and authority. Esteem honor, सम्मान में, और authority उसका right भी यही है. 2 नंबर पे आता है वो. Among us, हम सब के बीच में. Among the company of Spectator Club is another bachelor. ये भी bachelor. We know that the first member was also bachelor. उसकी स्टोरी कुछ अलग थी, उसकी घटना कुछ और थी. But anyhow, he was bachelor. क्योंकि वो क्रॉस हो गया था, उसके बाद उसकी मैरिज नहीं की थी. सेकंड मेंबर इज आल्सो बैचलर, अनदर बैचलर हु इज मेंबर ऑफ इनर टेम्पल. जो इनर टेम्पल का मेंबर है. ए मैन ऑफ ग्रेट प्रोबिटी, बहुत अच्छा है, प्रोबिटी वाला, ईमानदार आदमी.
विट अच्छी माइंड वाला, बुद्धि वाला है, एंड अंडरस्टैंडिंग समझ वाला है। यू कैन अंडरस्टैंड वेरियस फीचर, मल्टी फीचर्ड, टैलेंटेड है, वेरी ऑनेस्ट है, बैचलर है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, क्योंकि लॉयर है, एज वी नो दैट a man of yes, but he had chosen his place of residence rather to obey the direction of an old rebellious father than in pursuit of his own inclinations. रुचि, अपनी खुद की रुचियों की बजाय उसने अपने यहाँ रहने का, वो लंदन में वकील का अध्ययन कर रहा है, वकालत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, वो यहाँ रह रहा है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट। इट वॉज नॉट हिज पर्सनल इंटरेस्ट to be a lawyer in future. ये जरूरी है जानना। The second member of spectator club, इसके बारे में every detail was given by Steele. ये सारी डिटेल स्टील दे रहा है, राइटर दे रहा है। The second member of spectator club, उसके बारे में कहता है कि ये जो सेकंड मेंबर था, ये नहीं चाहता था कि ये वकील बने। देखिए, ये नहीं चाहता था कि ये वकील बने, लेकिन his father wanted, उसके पिताजी चाहते थे, my son will be a good lawyer, मेरा बेटा अच्छा वकील हो। तो एज पर द डायरेक्शन, और यू कैन से एज पर द पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ फादर, ही सेलेक्ट दिस प्रोफेशन। उसने ये जो प्रोफेशन का चयन किया, इट इज ड्यू टू द इंक्लिनेशन और द इंटरेस्ट ऑफ हिज फादर। अपने पिताजी की इच्छा के अनुसार उसने ये चयन किया। नेक्स्ट देखिए, तो यू अंडरस्टैंड, he was placed there to study the laws of land, जमीन जायदाद का जो कानून था उसको पढ़ने के लिए, and is the most learned of any house of laws of the stage। और राइटर कहता है कि वो शायद उस समय, उस जमाने में जो वकील वगैरह थे, उनमें सबसे पढ़ा लिखा और एक शिक्षित व्यक्ति था। आगे चार राइटर क्रिटिक के नाम आए हैं। एरिस्टोटल एंड लॉन्जाइनस आर मच बेटर अंडरस्टूड बाय हिम देन लिटिलटन एंड कोक। ये चार नाम आए हैं। In our question, I will provide you the notes, and in these type of the notes related to Spectator Club, we discussed all these four. So you are requested to observe my notes. I will also provide the notes in the same way. The father sets up every post questions related to marriage articles, leases and tenures. देखिए, पिताजी का इंटरेस्ट, पिताजी उसको वकील बनाना चाहते हैं, तो पिताजी अपने घर पे रह करके उस बेटे को डाक से पोस्ट करते हैं, क्वेश्चंस डालते हैं। आस पड़ोस में कोई घटना रिलेटेड, कोई कोर्ट केस रिलेटेड 3 चीजों से लिखा है इन्होंने। मैरिज आर्टिकल, विवाह के अनुच्छेद वगैरह जो होते हैं, लीजे जो जमीन जायदाद के पट्टे वट्टे, और टेन्योर जो होता है, अनुबंध जो जमीन जायदाद का होता है, मतलब इतने से इतने साल तक ये इसके पास ये एग्रीमेंट वगैरह, ऐसे रिलेटेड मैटर अगर कोई नाइबरहुड में हो जाते, पड़ोस में होते, तो पिताजी इनको लिख करके डाक से डालते थे अपने बेटे के पास, क्योंकि उसका बेटा वकील बन रहा है, एंड फादर जानना चाहता है कि उसका रिजल्ट और मेरे बेटा जो रिजल्ट देगा उसका कैसा रिजल्ट होता है। ही ऑल्सो मैच, उसको मिलाकर देखता। यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द विल ऑफ फादर, अबाउट द डिजायर ऑफ फादर, अबाउट द ईगरनेस, उत्सुकता ऑफ फादर, that really he wanted my son will be a good lawyer, अच्छा वकील बने। For which questions he agrees with an attorney to answer and take care in the land organization, land समूह के अंदर। अटॉर्नी से ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस फादर भेजते थे, आप समझिए, the son is so you can say beautiful, अपने पिताजी के लिए मतलब इतना वो था कि अगर अब आ ही गया और फादर्स की इच्छा पूरी कर रहा है, तो सारे के सारे क्वेश्चंस को he just discussed among the member of advocates. He just discussed all these questions among an attorney. attorney वगैरह जो होते थे, बड़े बड़े जजेस जो होते थे, उन सब से वो ऐसे क्वेश्चंस को मतलब डिस्कस क्या करता था, एंड बहुत सारा मतलब रेफरेंस बुक वगैरह देख करके, लॉज की वो बुक वगैरह देख करके, उसके बाद वो इसका फैसला करता था, और उसके बाद वो इन क्वेश्चंस को जो प्रॉब्लम फादर ने भेजी थी, इनको वापस पोस्ट करता था अपने पिताजी के पास कि भाई मेरे माय डियर फादर, ऑल दीज केसेस हैव दिस टाइप ऑफ द रिजल्ट। इसका जो रिजल्ट आएगा, अदालत में जो फैसला आएगा, कोर्ट में जो फैसला होगा, वो लगभग ऐसा सा
पिताजी also eager, yes, he also match, वो उधर उधर के दोनों फैसले मैच करता था एंड उसको देखता था कहाँ डिफरेंस आ रहा है. तो यू कैन अंडरस्टैंड आइदर इन द साइड ऑफ सन और इन द साइड ऑफ फादर. नाउ बोथ आर इंटरेस्टेड, बोथ डिसाइडेड टू बी ए गुड लॉयर. अब पिताजी की इच्छा के अनुसार बेटे ने भी तय कर लिया था कि वो एक अच्छा लॉयर बनेगा और पूरा इंटरेस्ट, पूरा डेडिकेशन वो अपने इस प्रोफेशन में लगाने लगा था, बिकॉज इट वॉज द विल ऑफ हिज फादर एंड द सन डिसाइडेड टू कंप्लीट दिस विल with a good profession, with a skillful profession and a very reputed profession. In our next video, we will read the next part. Thank you.